स्लीप कर रहे हो क्या आज? बैठ बैठ जाओ। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग नवीन। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग वर्षा। सर यस नवीन। सर आप जिस चैप्टर से अभी करवा रहे हैं उसी चैप्टर से सर हम नोट्स स्टार्ट कर दे क्या? हाँ वहीं से ही स्टार्ट कर दीजिए। यस सर। आप लोगों का अभी आप डीपीएस में हो ना? यस सर। तो आप लोग का अभी पीरियोडिक टेस्ट मिड टर्म होने वाला है, पता है नहीं पता है? यस सर। मिड टर्म का ये पोर्शन जो है स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है? यस सर। और इसके बाद लिमिट्स पढ़ाऊंगा, ये दोनों चैप्टर आएंगे, इसको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, ठीक है? जो पढ़ा रहा Yes, हूँ sir. उसी में से ही पूछूंगा, बाहर से कुछ भी नहीं पूछूंगा, लेकिन क्वेश्चन Yes, sir. कर दूंगा। इसलिए क्लास में ध्यान देंगे, कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से बनाएंगे, है ना? हरी बात Yes, sir. समझ में? और जो Yes, sir. फ्रेंड्स आपके मैथ्स लिए और क्लास अटेंड नहीं कर रहे उनको बोलिए कि ऑनलाइन क्लास अटेंड करना जरूरी है, अनिवार्य है, ठीक है? Inform your friends whosoever, whether they are in hostel or day boarders, they have to attend the class. Okay, let us start. Yes, sir. Sorry. So last class we have discussed what? Distance formula. Yes or no? Distance formula Yes, is clear? sir. पक्का? Yes, sir. पक्का ना? चलिए आज हम लोग Yes, sir. Today we will see section formula and area of a triangle. Okay? Yes, sir. Let us start. Area of triangle. You see, beta. Any triangle is having how many vertex? Sir, 3. How many vertex a triangle have? A, B, C. That's why it is named as triangle. Huh? Yes or no? Yes. If this triangle is lying in a plane, then the coordinates can be written as x1, y1 and X2, y2 and X3, Y3. very good. ठीक है, इतना तो समझने में कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है। अब अगर मुझे इस Yes, sir. ट्राइंगल का एरिया निकालना है, क्या निकालना है मुझे इस ट्राइंगल का? Area. Area. तो सिंपल सा फॉर्मूला देखो क्या लिख रहा हूं मैं, एरिया इज इक्वल टू हाफ नॉट बेस इनटू हाइट। यहाँ पे बेस हाइट दिया है क्या मुझे? मुझे तो No, कोऑर्डिनेट्स दिया है। sir. No, sir. व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन? Cod. Coordinates is given, so I cannot use base and height formula, no? Okay, Yes, sir. Now, Yes, Yes, sir. sir. see what I am doing. I am giving you a trick. I have written 1 2 3. What I have written? 1, 2, 3. So if I go from 1 to 2, then from 2 to 3 and then from 3 to 1. 1. बात समझ में? ये ट्रिक याद Yes, रहेगा? sir. हाँ जी। Yes, sir. मैंने लिखा x1 into y2 minus y, क्योंकि मैंने लिख रखा है 1 के बाद क्या आना चाहिए? 2 and 3. Similarly, X2. yeah, कोई नहीं, x2, yeah, then X3 minus y3 minus, X1. Oh, yes, sir. Y3 minus and then Y1 plus X3. X3. then Y1 minus very good, Y2. Y2. very good. तो आगे फॉर्मूला समझ में आया कि नहीं आया? Yes, Yes, sir. sir.
बना लोगे क्वेश्चन? बनेगा कि Yes, Yes, नहीं sir. बनेगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? चलो क्वेश्चन एक बनाते हैं अपन. Yes, read the question. एक सेकंड. Yes, just you can write this question in your copy. You have to solve this question. What is given? A triangle is given, yes or no? Yes, sir. And its coordinates are given 4, 4 and 3, 3 minus minus 16. and 3 and minus 2. 3 and minus 2. 2. Okay, so basically क्या है? Yes. x1 y1 x2 X2, y2 Y2, x3. X3, Y3. और मैंने क्या ट्रिक बताया? 1 से जाएंगे 2, 2 से जाएंगे 3 and 3 से वापस कहाँ चले जाएंगे? 1. Yes or no? Yes, sir. So area of triangle is given as area of triangle is equal to half. Now बताओ क्या करूं मैं? x1 Sir, क्या है? 4. 4 into tell what is y2? Minus 16. Minus 16 and minus of minus 2. Plus 2. Sir, plus 2. Very good. Then plus x2 क्या है? 3 Sir, 3. into minus 2 Minus 2 minus 2. 4. minus 4. 4. Yes or no? Right or Yes, wrong? sir. Then plus Right. 3 into again x3 is also 3. 3 into 4. 4 plus 16. 4 minus of minus 16. 4 plus is what? 16. Plus 16. Very good. Now it is basic maths na. Minus 16 plus 2. How much it is? Minus 14. 14. Minus 14 into 4. Minus 56. Again minus 2 minus 4 is minus 6. Minus 6 into 3 is 6. minus 18. Minus 18. And 16 plus 4 is 20. 23 jab 60. 60. माइनस 56 में से अगर मैं 60 करता तो यहाँ पे क्या बचता? 4. 4 में से माइनस 18 जाता तो क्या बचता? माइनस 14. माइनस 14 by 2 is what? Minus 7. But minus 7 is what? If I say my age is minus 15, does it make sense? So area of triangle can never be negative. आ रही बात समझ में? Negative. So Yes, I will sir. write it as mod of minus 7. 7 square units. आया कि नहीं आया समझ में? बनेगा ऐसा क्वेश्चन दूंगा तो? फिर Yes, से sir. रिपीट कर रहा हूँ. The students who have joined recently, I am telling you that from 15 onwards you will be having term exam. Okay, mid term exam. ठीक है? तो मिड टर्म एग्जाम में मैं सिर्फ 2 चैप्टर आपको दे रहा हूँ. 2 चैप्टर में से एक तो ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं. क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? स्ट्रेट लाइंस. स्ट्रेट लाइन. चैप्टर नेम इज स्ट्रेट लाइन. ओके. एंड चैप्टर नंबर 11 लिमिट्स. ये 2 चैप्टर ही मैं दूंगा खाली आपको. क्लियर है? और मेरे साथ साथ जो Yes, पढ़ते sir. जाओगे पूरा 40 में 40 आप इजीली क्या कर सकते हो? स्कोर कर सकते हो. और अगर क्लास अटेंड नहीं कर रहे हो और फेल हो रहे हो तो फिर मुझे आप ब्लेम नहीं करेंगे. ठीक है? ओके, नेक्स्ट. Last class I have discussed the properties of quadrilateral. Yes or no? Yes, sir. No, sir. Yeah. No, sir. You have not attended my class. Then you must. Have you attended my class or not? Sir, last में attend किए थे. किए थे तो मैं तो बताया था. Sir, चलो आपने फिर से रिपीट कर देता हूँ. क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं? एनी पॉलीगॉन हैविंग 4 साइड्स. लेटरल मींस साइड, क्वाड मींस 4. ठीक है? तो एनी पॉलीगॉन व्हिच हैव हाउ मेनी साइड्स? 4 साइड्स एज क्वाड्रिलेटरल. अब भाई मुझे 4 स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में बात करनी है. कितने स्पेशल? 4. 4. वो कौन 4. 4 हैं? बताओ जल्दी मुझे. Square, rhombus, parallelogram and पहला तो क्या है मेरा? रेक्टेंगल.
ट्रायंगल कहाँ से आ रहे हैं? स्क्वायर, Square square, पैरेललोग्राम or And rhombus. parallelogram, and rhombus. Rhombus. Rhombus, yes. Then rectangle कैसा होता है? Opposite sides are, opposite sides are equal. are and equal, diagonals are also equal. Equal. स्क्वायर कैसा Yes, होता है? sir. All sides are, All sides are Are equal. equal and diagonals are also equal. diagonals are also equal. पैरेललोग्राम क्या होता है? Opposite Opposite sides are side are parallel Opposite sides are equal, and diagonal are Parallel. not equal. but diagonals are not. Equal. Diagonals are not. और rhombus कैसा होता है भाई? All The sides are diagonals equal, are not equal. but diagonals are not. तो भाई Equal. अगर आपको पैरेललोग्राम और rhombus प्रूफ करने के लिए बोल रहा है तो आपको diagonals not equal प्रूफ करना है. अगर आपको रेक्टेंगल या स्क्वायर प्रूफ करने के लिए बोल रहा है तो diagonals are equal. ये प्रॉपर्टीज आपको समझ में आई या नहीं आई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, we have already discussed this question, but again I am repeating because many students have not joined my yesterday class, means last class. Tomorrow onwards, please join my class. जो भी मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ उसी से ही आपका मिड टर्म एग्जाम आएगा. सारी बात समझ में? Yes, sir. Sir. ठीक है, maths is very easy, provided you are practicing daily and making your concepts clear. Is that fine? Yes, sir. Yes, sir. इजी तभी रहेगा मैथ्स जब आप डेली डेली प्रैक्टिस करेंगे. ऐसा नहीं कि आज पढ़ लिए सर अब नेक्स्ट फ्राइडे को पढ़ेंगे, नेक्स्ट मंडे को पढ़ेंगे. नॉट लाइक दैट. डेली यू हैव टू गिव 15 to 30 minutes to maths in class 11th डेली. ओके, अभी तो मैं 50 to 30 minutes बोल रहा हूँ. जैसे हम 12th में जाएंगे तो फिर मैं आपको मैथ्स ही मैथ्स पढ़ाऊंगा. ओके, आगे चलूं Yes, बेटा. sir. स्लाइड्स, ऑफलाइन क्लास. शैल आई मूव? Yes, sir. ठीक. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपने निकालना सीख लिया. चलिए अभी दूसरा मेरे को जो है वो है क्या? सेक्शन फॉर्मूला. क्या फॉर्मूला? सेक्शन फॉर्मूला. कितने लोग पढ़े थे 10th क्लास में? हाउ मेनी नो व्हाट इज सेक्शन फॉर्मूला? ठीक है, ऑफलाइन वाले तो सब हाथ रेज कर रहे हैं, दे आर रेजिंग देयर हैंड्स. व्हाट अबाउट ऑनलाइन क्लास? डू यू नो व्हाट इज सेक्शन फॉर्मूला? ओके, लेट मी गिव यू. सपोज देयर आर 2 पॉइंट्स x1 and y1, coordinate of first point, and x2 and y2, and suppose another point P is dividing this line segment in the ratio of what? M is to n. What? It is dividing in the ratio of m is to n. Then coordinate of point x and y is given as x is equal to, please ध्यान देंगे, m जो है इस साइड है ना, तो m को x2 से मल्टीप्लाई करेंगे, m into x2, और n इस साइड है तो n को x1 से मल्टीप्लाई करेंगे. प्लीज इस चीज को ध्यान देंगे, नहीं तो बहुत लोग ये गड़बड़ करते हैं कि m को x1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और n को x2 से. यही एक सिली मिस्टेक आपको मैथ्स में बहुत भारी पड़ सकती है, m plus n. तो सेम कॉन्सेप्ट में मेरे को पता है कोऑर्डिनेट ऑफ y को मैं कैसे लिख सकता हूँ. टेल ऑनलाइन क्लास, x का कोऑर्डिनेट समझ में कैसे निकाला मैंने? m into x2. हाँ, तो मैं क्या Yes, लिखूंगा sir. यहाँ पे बताओ? N into m या n? मुंबई Sir, और M नागपुर which? into N. Sir, M. हाँ, मुंबई का m into Y2 M into Y2 plus plus n N Y1. into N Y1 into Y1. upon Divide by M M plus N. plus 1. हाँ जी. अब ये क्वेश्चन पढ़ो जरा. रीड दिस क्वेश्चन. गर्ल, एनी गर्ल प्लीज रीड दिस क्वेश्चन बेटा. Find the coordinates of the point which divides the line segment joining the point A5 minus 2 and B9 6 in the In what ratio ratio? In what Three ratio? to one. 3 to 3 ratio 1. 1. and 5 minus 2 is x1 y1 and 9,6 is x2 y2. 9. x1 निकाल के बताओ क्या करूंगा, किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 3 into 5 plus 9 into 1 या 3 into 9 plus 5 into 1? What will I do? Sir, 3 into 9. Very good. Sir, 3 into 9 plus sir, Plus? 1 into 1 5. into 5. into 5. okay, 1 into 5 is 5 only, but okay, let me write 1 into 5 divide by Sir, 3 plus 1. 1 plus 3. Yes or no? Yes, सारा sir. समझ में? Yes, sir.
Yes, sir. 9 3 का 27, 27 plus 5 32, 32 divided by 4, how much it is coming? 8. अभी 11th के बच्चों को कैलकुलेशन तो नहीं पता होगा ना, बेसिक मल्टीप्लिकेशन. दिस इज फॉर 5th and 6th स्टूडेंट, क्लास स्टूडेंट्स. Similarly, calculate y for me. What will I write? Please tell. Sir, 3 Sir, into 6. 3 into 6 plus 1 1 into into The 1 Sir, into 1 into minus 2. minus 2 divided by 1 plus 3. 6 3 जा 18, 18 minus 2. 16. 16 by 4 is what? 4. So 4. इसके भी कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या आपको? Yes, sir. यस सर, इससे भी इजी कुछ होगा क्या 11th क्लास के बच्चे के लिए? no, sir. चलो, तो क्वेश्चन समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, Yes. sir. अब एक आप लोग बताओ मुझे जरा, या रीड द क्वेश्चन एंड देन गिव द आंसर. मिड पॉइंट मतलब क्या होता है? जो बीच में इक्वली डिवाइड करते हैं. इक्वल डिवाइड मतलब 1:2. मिड पॉइंट जब भी बोलेगा आपको सिंपली याद रखना है x is equal to x1 plus x2 by 2 and y is equal to y1 plus y2 by 2. This is the simple formula. Now tell me, calculate and tell me the answer. Minus 2 and 3 by 2, that is 1 by 2. Very good. And minus 5 minus 1 is minus 6 by 2, that is minus 3. So what is the coordinate of midpoint? How will I write it? Half, The 1 upon comma, 2 and minus 3. And minus 3. Within the parenthesis, you have to write this parenthesis. This small bracket also you have to write it. Okay? Yes, sir. चलो, ठीक है ना? सर -7/2 है, y is equal to 7 1. कैसे आ रहा है आपका? -5 और -1, -7 कैसे हो रहा है? This is y1, this is y2. How are you adding -5 and -1 as -7? ध्यान दो, Okay, sir. ये x1 है ना, मैं x1 plus y1 नहीं बोला हूं, मैं x1 plus x2 and y1 plus y2 ऐसा बोला हूं मैं. ठीक है? ठीक है कि नहीं है? Yes, sir. Okay, this question, read this question. This question is very important. I am going to give a question on this pattern. स्क्रीनशॉट खींच लो, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन दूंगा मैं आपके मिड टर्म में. तो मैं जो बोलता हूँ मैं वही करता हूँ, और जो नहीं बोलता हूँ वो भी कर देता हूँ कभी कभी. तो दिस एक क्वेश्चन बता दिया मैंने आपको, इसलिए मैं बोल रहा हूँ मेरी क्लास अटेंड करना जरूरी है. यू विल बी नोइंग कि मैं किस तरह का क्वेश्चन देने वाला हूँ. नाउ रीड द क्वेश्चन, व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग. पहले उसको बताओ मुझे कि क्या समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन को देख के आपको. कुछ पल्ले पड़ रहे हैं? Are you getting something out of this question or totally getting bored? इंग्लैंड में जाके इंडियन टीम टाइप हो रहा है क्या? ऊपर से जा रहा है क्या क्वेश्चन? क्या बोल रहा है क्वेश्चन? पढ़ो. ऑनलाइन क्लास, प्लीज रीड दिस क्वेश्चन बेटा. In what ratio is the line joining A -1 and 1 and B 5 7 divided by the line x plus y is equal to 4? ठीक है, मुझे दिया क्या है? 2 पॉइंट दिया है, -1 और 1, और क्या दिया है? 5,7. इतना तो समझ में आ गया. और इसको एक लाइन जोड़ रही है. एक और लाइन है जो इस लाइन को काटते हुए जा रही है. उस लाइन का इक्वेशन ऐसे दिया x plus y is equal to 4. पूछ रहा है ये वाली जो लाइन है इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रही है. तो मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, ऐसे क्वेश्चन जब भी रहेंगे मैं m/n ना लेके मैं इसको क्या लूंगा? λ/1. क्योंकि जब मैं m/n लेता हूँ तो मेरे पास कितने वेरिएबल्स बन रहे हैं? हाउ मेनी वेरिएबल्स? 2. लेकिन मुझे इक्वेशन तो एक ही दिया है ना, तो इसलिए मैं इसको m/n ना लेके मैं कैसे ले रहा हूँ? λ/1. तो अब मेरे पास कितने वेरिएबल बन रहा है? ओनली लैम्डा. अगर मैं किसी तरह लैम्डा कैलकुलेट कर लिया तो मेरा आंसर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? Yes, sir. बात आई समझ में कि नहीं आया? क्या नहीं समझ में आया?
m/n तो रेशियो में काट ही रहा है, मैं m/n को λ/1 ले रहा हूं अपनी सहूलियत के लिए. फॉर माय ईज आई एम राइटिंग लाइक दैट because I need only one variable. I don't need to solve two variables. Two variables solve करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए. क्लास 10 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. ठीक है, ये जहां पे भी इस लाइन को काट रहा है, इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं p, q. क्या मान लेता हूं? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या मान लेता हूं? तो अब सेक्शन फॉर्मूले से मेरे को बताओ p की वैल्यू क्या होनी चाहिए? लैम्डा इंटू 5 या 5 इंटू लैम्डा प्लस -1 इंटू 1, यस और नो, डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइड बाय m प्लस n, यस और नो. ऑनलाइन क्लास समझ में आ रहा है बेटा क्या कह रहा हूं मैं? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, और q को कैसे कैलकुलेट करूंगा बताइए आप लोग? Sir, 1. अगेन 7 इंटू लैम्डा, यस और नो, m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 प्लस 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1, यस और नो. तो ये कितना हो गया? 5 लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा प्लस 1 एंड 7 लैम्डा प्लस 1 बाय लैम्डा प्लस 1. इतना हो गया. यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? मैं क्या कर रहा हूँ, वो जो गिवन लाइन है, वो लाइन सेगमेंट AB को जो कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, मैं उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूँ यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला. बस इतना ही किया मैंने अभी तक. इज दैट फाइन? Now what should I do to get the value of lambda? This point PQ is lying on line AB, but this point PQ is also lying on line x plus y is equal to 4, yes or no? तभी तो point of intersection Yes, है. sir. भाई ये जो point है मेरा, ये AB लाइन पे भी है और x plus y equal to 4 लाइन पे भी है. ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या है? P और Q की वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए. तो मैं P के बदले या x plus y equal to 4 के बदले में क्या लिख सकता हूँ? x plus y equal to 4 can be written as 5 lambda minus 1 by lambda plus 1, क्योंकि जो पॉइंट P है वो इस लाइन को सेटिस्फाई करना चाहिए, प्लस 7 lambda plus 1 by lambda plus 1 equal to 4. नाउ इस इक्वेशन को सॉल्व करो, लैम्डा की वैल्यू निकाल के बताओ. क्या बोला मैंने? समझ में आया नहीं आया? मैंने ये कहा कि सबसे पहले तो भाई जो लाइन ए बी है उसको मैं λ/1 के रेशियो में काट रही है ऐसा मान लिया. तो मैंने सबसे पहले पॉइंट पी, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था, इसको मैं z मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए. तो इसका कोऑर्डिनेट p, q मैंने निकाल लिया यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला. बट पॉइंट z इज आल्सो लाइंग इन दिस लाइन. Because this point z is lying on this line, so it must satisfy this line. So instead of x and y, I am putting the coordinate of p and q over here, and I am so going to solve this out. Okay? हाँ जी, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? डिनोमिनेटर तो सेम ही है दोनों का, लैम्डा प्लस 1. 5 लैम्डा प्लस 7 लैम्डा इज व्हाट? 12 लैम्डा माइनस 1 प्लस 1 गया, डिवाइड बाय लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 4. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको अगर हम, तो 12 लैम्डा विल बी इक्वल टू 4 लैम्डा प्लस 4 और 8 लैम्डा इज इक्वल टू 4 और लैम्डा विल बी 1/2, हाफ. आया समझ में? लैम्डा की वैल्यू तो निकाल ली, लेकिन मुझे लैम्डा पूछा है क्या? मुझे लैम्डा इज टू 1 पूछा है. क्या पूछा है? In what ratio? It is asking about ratio, no? So lambda is to 1 is 1/2 is to 1, that is 1 is to 2, that is 1 is to 2. आपने अभी बता रहा, आपने पढ़ा है 7th क्लास में. क्या पढ़ा है 7th क्लास में सर? हम तो भूल गए. अगर मेरे पास ऐसा 1/2 डिवाइड बाय 3, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? 1/2 into 3, that is 1/, तो मैं बोल रहा हूँ मेरा रेशियो आया लैम्डा इज टू 1, लेकिन लैम्डा की वैल्यू मेरी ऑलरेडी आई है 1/2/1. तो इसको मैं क्या लिखूंगा? 1/2 into 1, that is 1 is to. This is my answer.
आई बात समझ में? Yes, sir. तो इस क्वेश्चन में क्या ट्रिक सीखा आपने, पहले तो ये बताओ मुझे कि m/n में मेरे को 2 वेरिएबल्स लगते, मैं 2 वेरिएबल्स के बदले सिंगल वेरिएबल से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। ये पहला कॉन्सेप्ट आपने सीखा, सीखा नहीं सीखा? यस और नो? ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला सीख लिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना सीख लिया, और क्या सीख लिया आपने? डिस्टेंस फॉर्मूला निकाला। डिस्टेंस फॉर्मूला का एप्लीकेशन क्या है भाई? या तो आप कोलिनियरिटी को प्रूव करते हैं, और या तो टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल आप बता सकते हैं। यस और नो? क्लास 11th, आई एम टॉकिंग टू यू ओनली गाइस एंड गर्ल्स, प्लीज से यस और नो। नॉट ऑफलाइन क्लास, ऑनलाइन क्लास वालों से पूछ रहा हूँ, पता नहीं खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं लोग। Yes, sir. ठीक है, बस एक मासूम सा यस बोल दोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है, और ज्यादा कुछ नहीं चाहता हूँ। Yes, sir. A simple Yes, yes, it boosts my confidence कि okay, whatever I am teaching, you are getting it. Okay, चलिए अब बहुत important, हम आज के कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं, आगे बढ़ूं? Yes, sir. ठीक है, now please pay attention। अब जो मैं कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ आपको, just a minute। Very important concept. Again, I am going to give one question out of this. 2 ही चैप्टर में आपका पूरा मिड टर्म में पूछ रहा हूँ, हाफ ईयरली जिसको कहते थे प्राचीन समय में, कोरोना काल से पहले, ठीक है, उसमें भी ऐसा इजी चैप्टर मैं आपको दे रहा हूँ। तो आप बेवकूफ हो के अगर मैथ्स में 40 आउट ऑफ 40 नहीं लाते हो तो, ठीक है, मुझे मेरे सब्जेक्ट में सारे बच्चे 40 में 40 लाएं ऐसा चाहिए, एक बच्चा चाहिए नहीं मेरे को। फेल होने का तो सोचना ही नहीं, तो उल्टा लटकाऊंगा फिर मैं, सीधा स्लोप ऑफ लाइन निकाल रहा हूँ, अभी बताता हूँ फिर कैसे तुम लोग का एंगल निकालूंगा मैं और सेक्शन करूंगा। मेरे को 40 आउट ऑफ 40 चाहिए सारे बच्चों का। आ रहा है बात समझ में बॉयज एंड गर्ल्स? Yes, Yes, sir. sir. जोश? Yes, sir. जन्माष्टमी में सब थक गए क्या कल दही हांडी खा के? कितने लोग जन्माष्टमी सेलिब्रेट किए कल, बताओ मुझे, पहले ये बताओ फिर मैं आगे जाऊंगा। Switch on that power supply। कल कितने लोग जन्माष्टमी मनाए, पहले ये बताओ, फिर मैं आगे के कॉन्सेप्ट पे जाऊंगा। Sir, किए ना? ये मजा आया? Yes, sir. कितना मजा आया? Yes, sir. हाउ मच फन? क्या किए कल, जन्माष्टमी कैसे मनाए, थोड़ा सा बताओ मुझे, फिर मैं आगे जाता हूँ। अरे यार बहुत बोर बच्चे हो तुम लोग, कुछ जवाब ही नहीं देते हो। मैथ्स का पूछूं तो भी जवाब नहीं देते हो, बाहर का पूछूं तो भी जवाब नहीं देते। चलो अभी मैं पढ़ाई देता हूँ तुम लोग को। चलो, स्लोप, व्हाट इज स्लोप? अच्छा, कितने लोग पुल पे चढ़े कभी या पहाड़ पे चढ़े, ये तो बता ही दो भगवान के लिए मुझे। हाउ मेनी ऑफ यू हैव क्लाइम्ड अप माउंटेन और फ्लाई ओवर? हाउ मेनी ऑफ यू हैव क्लाइम्ड अ माउंटेन? Nobody has climbed a mountain yet। आज तक ट्रैकिंग वगैरह पे कभी नहीं गए? No, sir. नो सर, ओहो, अच्छा चलो ठीक है। ये मैंने 3 पहाड़ बनाए, ठीक है, सबसे कठिन चढ़ाई किस पे लग रही है चढ़ना? Why the first? Why not second? Why not the third? हाँ, जितना Sir, second. सेकंड कठिन है, फर्स्ट से भी ज्यादा। क्यों? First. ध्यान से देखो ना, स्क्रीन पे जो बनाया है उसको ध्यान से देख के Sir, बताओ। first is so hard to claim. इजीएस्ट, First. सबसे इजीएस्ट कौन सा है? Sir, Sir, third. third. और ये वाला? Sir, fourth is Sir, it. fourth. तो आप समझ गए ना, ढाल के Yes, कॉन्सेप्ट sir. को आप फिजिकली आप समझते sir. हैं, आपके दिमाग में ये पता है कि कॉन्सेप्ट कहाँ पे चढ़ना आसान है, कहाँ पे चढ़ना मुश्किल है। बस इस मुश्किल है। कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं? Slope. Slope. क्या बोलते हैं? Slope. आई बात समझ में? Yes, लेकिन sir. Yes, स्लोप को sir. हम मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करें? हाउ टू डिफाइन? Sir, tan theta. Tan theta. ओके, टेंजेंट। क्या? Tangent. टेंजेंट या tan थीटा। चलो Tan अभी theta. इस पे अब हम बात करते हैं। टेंजेंट कहाँ पढ़ा था लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर? वेयर हैव यू स्टडीड Sir, टेंजेंट? Sir, trigonometry.
सर्कल में पढ़े थे। सर्कल में पढ़े थे। Yes, ओके, sir. सर्कल क्या होता है? कर्व होता है ना, यस सर। जिसके दो पॉइंट्स को काटते हैं उसी को टेंजेंट बोलते हैं ना। नो हाँ? सर, इसको No, सेकंड sir. बोलते हैं सर, Sir, सेकंड बोलते हैं इसको। जो सर टेंजेंट 1 पॉइंट पे कट जो करता वन है। पॉइंट which से काटता touches है। circle only at one point। मैं बस Yes, ये sir. देखने के लिए गलत Yes, बोलता हूँ sir. कि तुम लोग कितना सही हो और क्लास में कितने बैठे हुए हो। यस सर। सर बोले अभी रात है। यस सर। तो व्हाट इज अ टेंजेंट व्हिच टचेस द कर्व एट सिंगल पॉइंट? ये आपको Point. पता है ना कि नहीं Yes, पता Yes, है? sir. और ये tan थीटा पता किसको है। बोलते हैं भाई? ये भी थोड़ा सा बता दो मुझे। राइट एंगल ट्रायंगल है सर, तो अपने पास हाइपोटेन्यूज है और सर परपेंडिकुलर अपन बेस को। क्यों? Upon बेस base. बाय हाइपोटेन्यूज को क्या बोलते हैं तो अपन? cos theta. और परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज को क्या बोलते हैं अपन? सर साइन थीटा। पर मुझे किस में इंटरेस्ट है? परपेंडिकुलर अपन बेस। ठीक है, इतना भी आपको पता है। ठीक है, अभी जैसे ये Yes, Zoom sir. मीटिंग ऑफ होगी फिर से मैं आपको ज्वाइन होना है। ठीक है, ऑनलाइन क्लास। यस सर। मिनट्स के बाद ऐसा नहीं कि गायब हो गए सबके सब। ठीक है, चलो अब क्या होता है इसको थोड़ा समझते हैं अपन। समझे? बढ़ूं आगे? यस सर, पढ़िए आगे। चलिए बढ़ते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं। अपने पास तो भाई अपन अभी तो क्या चैप्टर का नाम क्या पढ़े थे बताओ? क्या रखे अपन चैप्टर का नाम? कोऑर्डिनेट। सर स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ये बेसिकली मैथ्स के किस ब्रांच से है? कोऑर्डिनेट। ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है ना? यस Yes, सर। sir. अपने पास अगर दो पॉइंट्स हैं भाई, एक पॉइंट से तो काम बनेगा ही नहीं। अपने पास कितने पॉइंट्स हैं? Two. दो। पॉइंट्स हैं, जहाँ पे पहले वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? x1। y1। दूसरे वाले पॉइंट का X2. कोऑर्डिनेट क्या है? x2। y2। Y2. इसका मतलब तो बेसिकली यही होता है ना बेटा कि ये ओरिजिन से x1 डिस्टेंस पे और ये ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे? x2। सिमिलरली ये ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे? y1। y1 एंड y2। दूसरा वाला पॉइंट Y2. कितने डिस्टेंस पे? तो y2। ठीक है, लेकिन Yes, चेंज sir. इन x कितना है? चेंज इन x, डेल्टा x। डेल्टा मतलब चेंज। ये ट्रायंगल जो बना है डेल्टा, डिफरेंस। x2 माइनस x1। यस और नो? मैं चेंज। Yes, Yes, sir. sir. भाई ये पॉइंट 3 पे, ये पॉइंट 5 Sir, पे, तो इन दोनों के x1। बीच की डिस्टेंस कितनी है? 5 माइनस 3 ना? Yes, sir. Yes, sir. सिमिलरली चेंज इन y, ये कितना है भाई? ये डेल y, ये कितना होगा बताओ मुझे? बोलो। y2 माइनस, भाई मान लो ये पॉइंट 1 था और ये पॉइंट 4 का, तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना है? 4 माइनस 1। यस और नो? Yes, Three. sir. तो इसलिए y2 माइनस y1। कोई दिक्कत? No, No, sir. sir. पर दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल ना बेटा? Yes, Yes, sir. sir. So what is tan theta? If this angle is theta, then tan theta is what? y2 minus upon x2 minus x1। yes or no? Yes, sir. परपेंडिकुलर बाय बेस आपने बोला, मैं थोड़ी बोला। आप ही बताए मुझे। आपने बताया ना कि मैंने बोला था Yes, tan sir. थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस। आपने बताया था। No, sir. Yes, sir. tan थीटा को ही हम स्लोप बोलते हैं। इसको कभी कभी हम किससे भी डिनोट करते हैं? किस सिंबल से M. डिनोट करते हैं? m फॉर मुंबई, M. n फॉर। ठीक है, और इसे ही हम प्यार से क्या बोलते हैं बेटा? Slope. क्या बोलते हैं इसको? स्लोप। Slope. और इसको और कैसे लिख सकता था मैं? डेल y बाय डेल x, ऐसा लिख सकता था। Yes, sir. Yes, sir. डेल y बाय डेल x। Yes, कभी sir. कभी इसे मैं प्यार से ऐसा भी लिख सकता dy हूँ, upon dy dx. Yes, अभी sir. मैं अगले चैप्टर जब लिमिट में जाऊंगा तब मैं बताऊंगा ये डेल और डी में क्या डिफरेंस है। अभी बस इतना आप लिख लो। क्या? डेल Yes, y sir. बाय डेल x, वैसे ही dy बाय। आ रही बात समझ में? Yes, sir. स्लोप आया Yes, कि नहीं sir. आया समझ में? बताओ मुझको जरा। Yes, स्लोप का sir. कॉन्सेप्ट आया समझ में? चलिए, तो मैं ये अभी Yes, 35 sir. मिनट हो गया है, तो मैं इसको क्या है स्विच ऑफ कर रहा हूँ और फिर से मैं आपको रिजॉइन करना है क्लास। ठीक है? Yes, sir. आई एम Yes, sir. closing this Zoom meeting and again you have to rejoin because we have time limitation. ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो मैं उसको क्यों काटने दूं? मैं अपनी मर्जी से क्लास ऑफ करूंगा।
माय क्लास माय रूल्स। ठीक है, चलो जल्दी से रिजॉइन करो।